Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. We will continue the discussion of microcirculation. We were discussing in the previous lecture capillary fluid exchange. We will continue that discussion. But before that, one hadith, Farman Rasul sallallahu alayhi wa sallam. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद हैं, इन्ना अस्क़ल शैउन यूज़अ फ़ी मीज़ानिल मुअमिन यौमल क़ियामति ख़ुलुक़ुन हसन। इन्ना बेशक अस्क़ला सबसे ज़्यादा वज़नी भारी, अस्क़ल सक़ील उर्दू में इस्तेमाल होता है, अस्क़ल सबसे ज़्यादा भारी, अहसन अशरफ अनसब अरहम के वज़न पर, अस्क़ल सबसे ज़्यादा भारी, शैउन चीज़, यूज़अ जो डाली जाएगी, फी मीज़ानिल मोमिन मोमिन के मीज़ान में। कौन से मीज़ान है? मीज़ान अमल में, जहाँ अमाल का वज़न किया जा रहा होगा। यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन वो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ कौन सी होगी? खुलुकुन हसन, अच्छा अखलाक। अच्छे अखलाक का वज़न सबसे ज़्यादा होगा अमाल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद का मफ़हूम है, अच्छे अखलाक बहुत बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा। इबादात तो फ़राइज़ हैं, कुछ फ़राइज़ हैं जो करने हैं पूरे, और फिर उनके बगैर तो चारा नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद जो वज़न वाले आमाल हैं उनमें सबसे अच्छा जो है हुस्ने खुल्क है। ये अबू दाऊद शरीफ में और तिरमिज़ी शरीफ में ये रवायत आई है। क़यामत के दिन मोमिन की मीज़ान अमल में सबसे ज़्यादा वज़नी और भारी चीज़ जो रखी जाएगी वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। तो अखलाक की बेस पर अल्लाह पाक दर्जात बुलंद और जन्नत के फैसले फरमाएगा। जितना मीज़ान अमल में वज़नी चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा जन्नत में जाने का चांस होगा। और वो जैसे पहले भी कहीं जिक्र किया था, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि दोज़ख से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो दोज़ख से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए वही कामयाब है। तो इंसान की कामयाबी, तो ये इंसान की कामयाबी के लिए जो खुलुकुन हसनुन, अच्छे अखलाक का बहुत बड़ा किरदार होगा। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we were discussing the diffusion across the capillary membrane, and we saw that capillaries different permeabilities हैं different में, and the liver sinusoids are more permeable even to plasma protein. This slide is from the previous lecture, इसलिए जल्दी गुजार रहा हूँ. And the renal glomerular capillaries are very permeable, that is 500 times more permeable than the muscle capillaries, etc. And the concentration gradient determine the net rate की तरफ आज हम आएंगे, net rate of the fluid, net rate and the direction of the diffusion. ये भी हमने देख लिया था, filtration will occur low proteins and this interstitial fluid is in the gel form, and there are free fluids नहीं होता, कम होता है, and it is the gel form में absorb to the hyaluronic acid and proteoglycan जो हैं उसमें, and collagen जो protein है उसके साथ ये होते हैं। Free fluid बहुत थोड़ा होता है, only less than 1%, but when edema occurs, this free fluid is more, and this is dispersible. Free fluid, pit formation, edema जब होता है तो you can form a pit by exerting some pressure over the edematous part. So it can increase up to 50% of this. ये हमने डायग्राम देखी थी, gel state of the fluid. And now, today we are going to talk about what are the forces which will favor the filtration of this fluid. Fluid जाएगा, उसके साथ चीजें जाएंगी, water soluble चीजें जाएंगी. So the forces which are responsible for the filtration of this fluid and absorption of this fluid is constantly being replaced. There is constant turnover of this interstitial fluid. As हमने बात की थी ना, water is moving across the capillary membrane 80 times faster than the linear movement of the water. ये देखी थी. So there is in and outward movement of the water. So interstitial fluid is constantly being replaced by new fluid. So what are the forces which will determine this filtration? There are 4 forces across the capillary membrane. One is the capillary pressure.
जिसका हमने we were talking about the capillary pressure at the arterial end, the capillary pressure is high, at the venous end it is low. तो कैपिलरी प्रेशर को हम देखेंगे एंड मीन कैपिलरी प्रेशर जो कैपिलरी के अंदर है दैट विल कैपिलरी प्रेशर पीसी वी विल अब्रिविएट इट एज पीसी प्रेशर इन कैपिलरी पीसी. This is a pressure inside the capillary. You can imagine it is a force which will be forcing the filtration, which will be forcing the fluid out of the capillary. अंदर जो pressure. So it is a plus sign के साथ filtration pressure. Then interstitial fluid pressure. बाहर वाला जो fluid है उसका भी अपना pressure होगा. जिसको कहेंगे PIF, IF interstitial fluid. Interstitial fluid pressure. This is strange. Apparently लगता ये है कि ये अंदर कैपिलरी का प्रेशर है तो वो बाहर फोर्स कर रहा है, बाहर का फ्लूइड का प्रेशर है, that should be forcing opposite, so it should be a negative pressure. Inward force होनी चाहिए. फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दे. Inward force होनी चाहिए. तो interstitial fluid अगर वहां पे प्रेशर हो, it should be opposing this capillary pressure. वो फ्लूइड इधर फिल्ट करता है, ये इधर करता है, बैलेंस किधर मेंटेन होता है. फिलहाल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक बात इसमें रहती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर में, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल समझने के लिए ये दिस इज नेगेटिव प्रेशर. Then the plasma colloid osmotic pressure. There are proteins in the plasma which are not filtrable. They do not pass through the capillary. So because of their no filtration, there will be retention of the fluid, जिसको हम osmotic pressure कहते हैं. So plasma protein का colloid osmotic pressure, that is known as plasma protein colloid osmotic pressure, which is inward force that will be attracting the fluid from the interstitium into the vascular compartment. ये जो हम जितना 28 मिलीमीटर मरकरी आपने सुना होगा प्लाज्मा प्रोटीन का, that is the retention force, that is the attraction force. Water will be moved toward these proteins, so that's why this is also given a negative sign. It is the inward force with respect to कैपिलरी के, कैपिलरी से बाहर वाले फोर्सेस को हम प्लस साइन दे रहे हैं और कैपिलरी के अंदर आने वाले फोर्सेस को हम माइनस साइन दे रहे हैं. So this is the third force. क्या चीज रह गई है? There are maybe some protein in the interstitium. So interstitial fluid colloid osmotic pressure. Interstitial fluid colloid osmotic pressure, ये नाम लिखा हुआ है. It is an outward force. ये naturally अगर बाहर प्रोटीन है, they will be attracting water, so they will be outward force, वो force करेंगे. अब net balance जिधर होगा fluid उधर जाएगा. Filtration will be in that. So these are the main four primary forces which are responsible for filtration of the fluid or absorption of the fluid. अगर inward forces ज्यादा हैं, absorption will be taking place. अगर ये दो हावी हैं, absorption will be taking place. अगर ये दो हावी हैं तो filtration will be taking place. Net filtration pressure will be sum of all these forces. हम देखेंगे प्लस कौन कितने हैं और माइनस कितने हैं, इनका जो फाइनल रिजल्ट होगा. इफ इट इज प्लस नेट फिल्ट्रेशन फोर्स, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर NFP, net filtration pressure, this will be, if it is positive, outward movement will be taking place. If it is negative, inward absorption of the fluid will be taking place. इसको हम देखते हैं, आगे देखेंगे. So net filtration pressure is, इनको जमा कर लें जो भी है, that will be net filtration pressure. This is the diagrammatic representation of the same four forces. That is the capillary pressure, outward force, interstitial fluid pressure, opposite to this. Filar, it is opposite. And plasma colloid osmotic pressure is the inward force and interstitial fluid pressure is outward force. ये चार pressure हैं. Net filtration pressure, ये दो inward, दो outward हैं. This is outward, and ये दो inward हैं. फिलहाल this is again a diagram of the filtration. फिलहाल यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, वैल्यूज अभी मैंने बोली नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है, बोल देता हूँ लेकिन जरा सी तब्दीली के साथ. This is arteriolar end. Capillary is being formed here. Arterial end of the capillary, where the capillary pressure, if you
capillary net filtration pressure is plus 10 millimeter of mercury. That is the colloid osmotic pressure, that is ये जो इनकी minus capillary platter colloid osmotic pressure बाकी उसके capillary का pressure minus करके net filtration pressure अगर 10 है तो then there will be filtration of the fluid, more fluid will be arteriolar end पे there will be filtration of the fluid, more fluid will be filtered out. 24 liters per day moves out of fluid. As we move from there, we know the along the capillary, the pressure, capillary pressure falls at this end of the capillary pressure is only 10 millimeter of mercury, while osmotic pressure remains the same, osmotic pressure. So net filtration pressure is -7. There is more absorption of the fluid. So 20.4 liters of the fluid will be absorbed. Filtration 24 लीटर की हुई है, absorption 20.4 लीटर की हुई है, तो 3.6 जो फर्क रह गया, that 3.6 will be carried by those lymphatic capillaries. लेकिन ये 4 कैपिलरी प्रेशर दिखाएंगे, वो 4 कैपिलरी को ये इस डायग्राम से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड आनी चाहिए थी. If net filtration pressure is positive, as I was saying in the previous diagram, positive, arterial end पे का पॉजिटिव होता है, डायग्राम आने का चलिए फायदा है. Arterial end पे pressure, net filtration pressure is positive because of the more capillary fluid pressure. बाकी pressure तो शायद बराबर ही होंगे. Interstitial fluid pressure that remains same whatever it is. और colloid osmotic pressure of the plasma वो भी 28 millimeter of mercury. और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो प्रोटीन हैं उनका कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी चेंज नहीं होता, जितने भी प्रोटीन है बहुत थोड़े हैं उनका जो है वो नहीं चेंज होता है. दैट इज कैपिलरी प्रेशर. Capillary pressure is at high at the arterial end and it is low at the venous end. So at the arterial end of the capillary, this net filtration pressure is positive, so filtration will be taking place. That is, more fluid will be filtered than absorbed. सीधी सी बात. And if the net filtration pressure is negative, as is the case in the venous end of the capillary, so देखेंगे अभी हम प्रेशर का एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया. हाँ, एक लफ्ज ऐड करूंगा. All these 4 pressures, ये जो हमने गिने, कैपिलरी pressure, then the colloid osmotic pressure of the plasma and the colloid osmotic pressure in the interstitium and the interstitial fluid pressure, ये चारों forces याद है. These are collectively known as Starling forces. इनका नाम क्या है? These are the Starling forces which are responsible for this filtration and absorption. So if the Starling forces are positive, if it is in the positive, filtration will be occurring. And if the net filtration pressure is negative, venous end of the capillary जो होता है, and the more absorption of the fluid will occur than filtration. इसलिए हमने देखा कैपिलरी एंड पे, आर्टीरियल एंड पे more filtration taking place. और आगे जाते जाते one word of caution, ऐसे नहीं है कि there is only filtration at the arterial, there is no absorption. दोनों हो रहे होते हैं भैया वक्त. Fluid is moving out as well as in, but more fluid will be moving out at the arterial end, and the venous end पे भी fluid is moving out and in. Both fluid is moving both direction, but net movement will be inward. That is from the interstitium into the capillary at the venous end or arterial end. So the more absorption fluid will be occurring than filtration. इसलिए लिखा हुआ filtration भी हो रही है उधर, लेकिन absorption ज्यादा हो. Total filtration rate जैसे हमने उस डायग्राम में देखा, normal total filtration rate throughout the body is 24 liters. This much fluid is filtered in whole of this systemic capillaries, 24 liters per day. That is total absorption. वो जो venous end तक जो total absorption होगी, that will be 20.4 liters. तो इसका मतलब फर्क रह गया, कितना फर्क रह गया? 3.6 लीटर का. तो 3.6 liters of the एक्स्ट्रा फ्लूइड नेट फिल्ट्रेशन जो कैपिलरी में रह गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये कहाँ जाएगा? दिस इज द फ्लूइड which will be taken by the lymphatic capillaries and will be brought to the
blood. This is how the balance is maintained. This fluid is being filtered and it is being absorbed by the filtration. तो कैपिलरी से हो रही है, absorption दो जगह से हो रही है. 20.4 लीटर वहां से हो रही है कैपिलरी के वीनस एंड तक absorption होती है, and rest 3.6 लीटर जो है that is taken by the lymphatic capillary. इसको हम डिटेल में देखेंगे lymphatic transport को. Now forces acting across the capillary membrane. Mean capillary pressure आर्टीरियल एंड पर कितना है, वीनस एंड पर कितना है, इनका मीन जो कैपिलरी प्रेशर है दैट इज टेकन एज 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. दिस इज मीन कैपिलरी प्रेशर. इट इज हायर एट द आर्टीरियल एंड, सीधी सी बात है, एंड इट इज लो एट द वीनस एंड, सीधी बात. बट मीन कैपिलरी, सारी कैपिलरी का एक प्रेशर अगर हम एक ही तस्वर करें, इसके मुताबिक हम कैलकुलेट करें फिल्ट्रेशन फ्लूइड का फॉर्मेशन, तो उस पर क्या क्या रिजल्ट होगा. इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इज सब एटमॉस्फेरिक. ये वो इंपॉर्टेंट बात जहां पे मैं कह रहा था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो हम इनवर्ड फोर्स में कह रहा था कि फिलहाल इनवर्ड फोर्स मान लें, लेकिन our interstitial fluid pressure in most of our interstitium is not positive, it is negative. एटमॉस्फेरिक के मुकाबले में, हम एटमॉस्फेयर के साथ प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं ना, एटमॉस्फेरिक के मुकाबले में ये कैपिलरी प्रेशर एटसेट्रा, ये सारे प्रेशर हम बोल रहे हैं ना. सो इट इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज नॉट पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव होता आउटसाइड है ना, तो ये इनवर्ड मूवमेंट होता, ये नेगेटिव है, इट इज अगेन आउटवर्ड. तो आउटवर्ड फोर्स तीन हो गई. आउटवर्ड फोर्स एक कैपिलरी प्रेशर था, आउटवर्ड फोर्स एक थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर था, अब ये भी ऐड हो गया. दिस इज अगेन द कोलॉइड, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, दिस इज आल्सो नेगेटिव. दिस इज आल्सो सकिंग द फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरीज, इट इज नेगेटिव. और दिस इज नेगेटिव. तो ये तीन फोर्सेज हो जाती हैं. These three forces, capillary pressure, the negative interstitial fluid hydrostatic pressure and the colloid osmotic pressure in the interstitium, ये तीनों outward forces हैं. And the only inward force remains is the plasma colloid osmotic pressure of that 28 millimeter of mercury. वो सिर्फ एक रह जाता है. तो आप इस पे कैलकुलेट करेंगे. So it is negative with respect to atmospheric pressure. Interstitial fluid pressure is negative. It is not positive. Positive होता तो वो it should be opposing the capillary pressure. It is negative, so it is in the favor of capillary. ये capillary pressure के साथ काम कर रहे हैं. So pressure in tightly bound encapsulated organ and tissue is positive. कुछ जगहों पे दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो है ये पॉजिटिव है. ज्यादातर हमारे इंटरस्टिशियल में, स्किन के नीचे या मसल्स में इट इज नेगेटिव. कहां पे पॉजिटिव है? जो एनकैप्सुलेटेड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज हैं. मिसाल के तौर पर ब्रेन का क्रेनियम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर 10 मिलीमीटर इज of mercury. If this interstitial fluid pressure 4 to 6 millimeter it is, so the cerebrospinal fluid का प्रेशर इतना है, और interstitial fluid pressure का कौन सा, जो न्यूरॉन के दरमियान जो फ्लूइड है उसका प्रेशर है 4 to 6, cerebrospinal fluid का प्रेशर है 10. तो ये वाले cerebrospinal fluid is also extracellular fluid ना, उसका प्रेशर is 10, और जो बाकी ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि क्रेनियम के अंदर है, एनकैप्सुलेटेड क्लोज कैविटी में दिस इज हाई प्रेशर. लेकिन स्किन के नीचे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है वो माइनस में, -3. आगे बात करेंगे. किडनीज में इंट्राकैप्सुलर प्रेशर इज 13 millimeter and this fluid pressure is the interstitial fluid pressure is 6. This is again plus. और आइस में भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज आल्सो प्लस. आई ये नजर नहीं आ रहा, दिस इज आई, ये भी एनकैप्सुलेटेड है, इसके अंदर भी प्रेशर ज्यादा होता है. अदरवाइज जनरल इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इज नेगेटिव. आगे हम देखेंगे कितना नेगेटिव है, मैंने बोला अभी, लेकिन कितना नेगेटिव हम आगे देखेंगे. Plasma colloid osmotic pressure
ये क्या है? दिस इज द ऑनकोटिक प्रेशर, प्रोटीन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर, मोस्टली ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन, एंड इट इज डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरी वॉल। वो सब्सटेंसेस जो कैपिलरी वॉल के अक्रॉस ना जा सकें, उनकी वजह से कैपिलरी होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कैपिलरी, सम सॉल्यूट्स दे डू नॉट क्रॉस द कैपिलरी, वो उनमें प्रोटीन भी है, या कोई भी जो चीज अक्रॉस द कैपिलरी ना जा सके, तो दैट विल क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्लाज्मा प्रोटीन ने ये ऑस्मोटिक प्रेशर किया हुआ है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने ज्यादा प्रोटीन होंगे, दैट्स व्हाई एल्ब्यूमिन इज स्मॉल प्रोटीन, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल इज ट्रेमेंडस। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो सबका बराबर होगा, लेकिन इफ दी 1 ग्राम ऑफ fibrinogen, 1 gram of this albumin, this will be having very high number of molecular weight molecule as compared to 1 gram of fibrinogen, उसका molecular weight ज्यादा है। So this depends upon the number of particle. Osmotic pressure contribution is of albumin is maximum, क्योंकि वो है भी ज्यादा, एल्ब्यूमिन है भी, टोटल अमाउंट भी ज्यादा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा है, पर उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत थोड़ा है। तो दी टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर इज 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसमें भी जरा सी तकसीम है। प्रोटीन अगर खुद ही सिर्फ होते ना तो उसका 19 होता, 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ड्यू टू द एक्चुअल प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन खाली नहीं है, उनके साथ बाद प्रोटीन के साथ सोडियम भी लगा हुआ है, कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स भी लगे हुए हैं, वो दे आर आल्सो रिटेन। एनीथिंग व्हिच इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इज नॉट फिल्टरेबल, वो जो फिल्टर नहीं हो गए तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर डोनन्स इफेक्ट जिसको कहते हैं। तो दी 9 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज ड्यू टू डोनन्स इफेक्ट बिकॉज सोडियम, पोटेशियम और सम अदर सब्सटेंसेस हेल्ड बाय द प्रोटीन। प्रोटीन खुद तो रह रहे हैं, सोडियम को भी रख लिया तो उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ऐड हो जाएगा, जिसको हम डोनन्स इफेक्ट बोलते हैं। तो दी टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रोटीन को हम सिर्फ सिंपली याद रखें, प्रोटीन की वजह से टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर इज 28 millimeter of mercury. So that is very important force, the only force which is causing inward movement of the fluid. बाकी तीनों forces are outward. Capillary pressure तो है ही outward, चाहे थोड़ा है या ज्यादा है, it is outward. Venous end पे 10 है तो outward ही है, arterial end पे अगर 25 है या 30 है, it is outward है। Osmotic pressure depends upon number of particles, ये तो अभी हमने बात की। जैसे हम देखें एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट है 69,000, तो उसका टोटल कंसंट्रेशन भी सबसे ज्यादा है, 4.5 या 2.5 या ये 0.3 है, तो 4.5 भी है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 21.8। एल्ब्यूमिन ही देर है 28 में से 21.29, 22 तो वो दे रहा है एल्ब्यूमिन, और 6 मिलीमीटर ये ग्लोबुलिन दे रहा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, और ये दिस इज बिगर है। एंड फाइब्रिनोजन सबसे बड़ा है और वो है भी बहुत थोड़ा, 0.63 ग्राम, उसका मालिक टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर 0.2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वो दे रहा है। So the total osmotic pressure of 28 millimeter, maximum contribution is that of the albumin. Albumin का molecular weight भी इन सब में कम है और total concentration भी सबसे ज्यादा है, तो total number of particles पे depend करता है, वो सबसे ज्यादा है molecular weight. The osmotic pressure of albumin is 21.8 millimeter of mercury. Interstitial fluid colloid osmotic pressure, ये तो प्लाज्मा प्रोटीन का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा प्रोटीन यूजुअली डू नॉट पास थ्रू द कैपिलरी, हमें पता है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन पासेस आउट एंड एल्ब्यूमिन मे लीक आउट, और उसकी वजह से दैट कैन नॉट बी रीअब्सॉर्ब, फिल्टर तो हो जाते हैं लेकिन एब्सॉर्ब नहीं होता। दैट टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन इज ओनली 2 to 3 gram per deciliter, जबकि plasma proteins are 6 to 8 gram per deciliter and the interstitial fluid proteins are only 2 to 3 gram per deciliter। तो इसी तरह osmotic pressure उसका भी कम होगा। Colloid osmotic pressure of interstitial fluid is 8 millimeter of mercury। interstitial fluid colloid osmotic pressure प्रोटीन जो है they exert 8 millimeter of mercury osmotic pressure। तो ये 28 अंदर वाले, बाहर वाले 8। प्रेशर एट द आर्टीरियल एंड, अब आ जाएं आर्टीरियल एंड पे, फोर्सेस मूविंग द फ्लूइड आउट आर्टीरियल एंड पे। अब एग्जैक्ट प्रेशर स्टार्लिंग फोर्सेस आर्टीरियल एंड पर कैसी है? दैट इज
कैपिलरी प्रेशर अभी मैंने कहा, अब क्वांटिटी हम क्वांटिफाई कर रहे हैं. Capillary pressure at the beginning of the capillaries is 30 millimeter of mercury, and the negative interstitial fluid pressure is 3 millimeter of mercury. अब इसके साथ हमने प्लस क्यों लगा दिया है? बिकॉज इट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड साइड पे नेगेटिव है. अगर कैपिलरी साइड से देखें इट इज पॉजिटिव, इट इज आउटवर्ड फोर्स, so it should be added to 3, so it is 33 हो गया. And the interstitial colloid osmotic pressure अभी पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट की थी 8 millimeter of mercury. So forcing moving the fluid out, these are the 3 pressures. इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर का नेगेटिव होना भी आउटवर्ड फोर्स हो जाता है. इट इज नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव होता तो इनवर्ड फोर्स होता. इट इज नेगेटिव, सो इट इज आउटवर्ड फोर्स मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में. सो इट इज आउटवर्ड फोर्स, सो द टोटल प्रेशर यू कैन सम अप 41 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. आर्टीरियल एंड पे बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द आर्टरीज पे pressure is filtration pressure, net filtration pressure is net filtration नहीं, outward force is 41 millimeter of mercury. और यहाँ पे प्रोटीन भी है. plasma colloid osmotic pressure will be opposing this. वो कितना है? That is only 1/4. That is the plasma colloid osmotic pressure is 28 millimeter of mercury. तो अब कैलकुलेट कर लें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. यहां से कैलकुलेट करें 41 - 20, जैसे 13 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. आर्टीरियल एंड पर 13 millimeter of mercury net filtration force है. Of course, when we move from the arterial end of the capillary toward the middle of the capillaries, this pressure is reducing, so ये भी कम होता जाएगा. और as we are in the middle तकरीबन बराबर हो जाएंगे. और as we move toward the venous end, ये pressure कम होता जाएगा, तो ये ज्यादा होता जाएगा. 41 से नीचे, 28 से जब नीचे आएगा, absorption will be taking place more. So the net filtration pressure at the arterial end of the capillary, forcing arterial end, वो red में लिखा हुआ है main heading, that is pressure at the arterial end, that is net filtration pressure is 13 millimeter of mercury. It will be forcing the fluid out. So if कितना fluid निकलता है? 1/200 of the plasma is filtered. Plasma जितना भी गुजरता है उसमें से 200 part is filtered. वो फिल्टर हो जाता है. इस फिगर को याद रखने की जरूरत नहीं. टोटल क्वांटिटी हमने मेजर की हुई है, दैट इज 24 लीटर पर 24 आवर्स. फोर्सेस मूविंग द फ्लूइड. कौन सी वीनस एंड पे क्या हो रहा है? वीनस एंड पे कैपिलरी प्रेशर जो इनवर्ड फोर्स है वो तो वही प्लाज्मा प्रोटीन का कोलाइडम. अब उसको पहले क्यों लिख दिया? अब ये ज्यादा हो गई है इसलिए इसको पहले लिख दिया. इट इज 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. बाकी तीनों फोर्सेस मिलकर जो आउटवर्ड फोर्स है वो यहाँ पे कैसी है? दैट इज उसको कैलकुलेट. फोर्सेस मूविंग द फ्लूइड आउट, कैपिलरी प्रेशर इज ओनली 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हियर. बाकी दोनों प्रेशर वही है, 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इनको सम करें, दिस इज 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. सो इनवर्ड फोर्स इज 28 एंड आउटवर्ड फोर्स हियर एट द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरीज इज ओनली 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. नाउ द इट इज द इनवर्ड फोर्स इज मोर एज कंपेयर टू आउटवर्ड फोर्स. फर्क किस में पड़ा है? ये दोनों प्रेशर उतने हैं, ये भी उतना ही है. ये कम हो गया. इट वाज 30 आर्टीरियल एंड पे, और ये अब 10 हो गया. तो वो कम होने की वजह से दिस इज ओनली 21 रह गया, 41 के बजाय 21 रह गया. सो द इनवर्ड फोर्स दैट इज 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्लाज्मा प्रोटीन का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज मोर हियर एट द वीनस एंड. सो देयर विल बी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. यहाँ पे कैलकुलेट करें, इट इज 28 - 21, इट इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इट इज काजिंग द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर. इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है. और यहाँ पे हमने ये भी बात की है 90% ऑफ द फ्लूइड इज एब्जॉर्ब्ड हियर. 90% मीन क्या मतलब? 24 लीटर्स ऑफ द फ्लूइड इज फिल्टर्ड इन 24 आवर्स, आउट ऑफ विच 20.4 लीटर्स इज एब्जॉर्ब्ड. ऑलमोस्ट 90% हो जाता है. मोस्ट ऑफ द फ्लूइड इज एब्जॉर्ब्ड. वो जो बाकी 10% रह गया या 3.6 लीटर रह गया, दैट विल बी टेकन बाय द कैपिलरीज. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह. फोर्स एक्टिंग अक्रॉस द कैपिलरी वॉल, ये हमने ये डायग्राम दोबारा आ गई.
That is at the arterial end, net filtration force is in the filtration side, and there is the filtration of the 24 liters of the fluid. At the venous end, it is -7 ho gaya, and net absorption is taking place. 20.4 liters of the fluid is absorbed. So 24 filter हुआ है, 20.4 लीटर एब्जॉर्ब हुआ है. फर्क कितना रह गया? 3.6 लीटर का. दैट 3.6 लीटर ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स इन द इंटरस्टिशियम. वो रिमेन अगर रहे हर वक्त 24 आवर्स में एडिमा हो जाए? नहीं. अल्लाह हैज क्रिएटेड दिस इज एक्स्ट्रा चैनल, extra lymphatic capillaries which will take this extra 3.6 liters of the fluid. ज्यादा भी बने तो ज्यादा भी lymphatics will carry. इसको हम डिस्कस करेंगे lymphatic जब हम सिस्टम डिस्कस करेंगे. तो ये वही डायग्राम हमने देख लिया. इस स्लाइड की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए. दैट इज ये स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम है. ये स्टार्लिंग फोर्सेस जो हमने देखा इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा फर्क जो है, ऑलमोस्ट अ स्टेट ऑफ नियर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन. जितना फ्लूइड फिल्टर हो रहा है वो उतना एब्जॉर्ब हो रहा है. जो थोड़ा सा फर्क रह गया है वो लिम्फेटिक कैपिलरी. फिल्ट्रेशन फोर्सेस आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द एब्जॉर्प्शन फोर्सेस. वॉल्यूम फिल्टर्ड थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द कैपिलरीज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द. ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, वो ऑलमोस्ट का मतलब जो थोड़ा फर्क रह गया दैट इज टेकन by the capillaries. इसको कहते हैं हम स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम. ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तकरीबन के. हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, कांस्टेंट रहता है. जरा सा अब इसको और हम सम अप कर रहे हैं. दी स्टार्लिंग फोर्सेस को हम मुख्तसर कर रहे हैं. अभी तक तो हमने अलग अलग प्रेशर, कैपिलरी प्रेशर वगैरह हमने अलग किए हुए थे ना. आप नेट प्रेशर की बात करते हैं. मीन फोर्सेस मूविंग, मीन, अब मीन की बात कर रहे हैं, नॉट दी mean forces moving the capillary. mean capillary pressure 17.3, वहां पे 17 लिखा था ना, to be exact it is 17.3 millimeter of mercury, and negative interstitial fluid pressure is 3 and the 8 millimeter of mercury. तो ये this is 28.3 millimeter of mercury. ये mean forces, mean. हमने क्या किया, कैपिलरी आर्टीरियल एंड पे नहीं देख रहे, हम मीन देख रहे हैं. पूरी कैपिलरी का एज ए होल देख रहे हैं, सबको मीन करके देख रहे हैं. मीन प्रेशर, कैपिलरी प्रेशर है 17.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ये तो उतना ही है, 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आउटवर्ड. दिस इज 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आउटवर्ड. तो टोटल आउटवर्ड फोर्सेज आर 28.3. मीन फोर्सेज आर 28 और इनवर्ड फोर्स वो ये एक है, प्लाज्मा प्रोटीन का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो ये थोड़ा सा जो फर्क है, 28 आउटवर्ड फोर्सेज मीन एंड इनवर्ड फोर्सेज 28.3 है, ये 28 है. 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का फर्क का जो फर्क रह जाता है, उस वजह से 3.6 लीटर ऑफ फ्लूइड रिमेन इन द interstitium which has to be carried by the lymphatic channels. This is the Starling equilibrium ऐसे maintained है. ये जो 0.3 का फर्क रह गया है, this fluid is taken by, इसकी वजह से fluid filter ज्यादा रह जाता है, absorption उतनी नहीं होती. 20.4 लीटर absorb होता है 24 hours में, और filter होता है 24 लीटर्स. इस वजह से इस 0.3 के फर्क की वजह से. नाउ एक और टर्म देखने के लिए, समझने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए चीजों को, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट. अभी हमने फिल्ट्रेशन देखा है, स्लाइट इम्बैलेंस ऑफ 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पिछली स्लाइड पे देख के आए हैं. इम्बैलेंस है ना. फिल्ट्रेशन फोर्सेज आर 20.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और एब्जॉर्प्शन फोर्सेज आर ओनली 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इम्बैलेंस का फर्क कितना है? 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. उसकी वजह से कितना फ्लूइड ज्यादा रह जाता है उधर, कितना फ्लूइड ज्यादा फिल्टर हो जाता है एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में. सो स्लाइट इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेज ऑफ 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दिस कॉजेस स्लाइट मोर फिल्ट्रेशन देन एब्जॉर्प्शन. वी हैव सीन इट. वो क्या फर्क है? एक्सेस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड नेट फिल्ट्रेशन. वो जो 3.6 लीटर पर 24 आवर्स गिना हुआ है ना, दैट इज अबाउट 2 ml पर मिनट, शायद ऐसा आता है.
2 ml per minute, उसको कैलकुलेट कर लें. So this fluid is returned back to circulation through lymphatics. वही 3.6 लीटर बोलें या 2 ml per minute बोलें. 3.6 liters in 24 hours, about 2 ml per. So net filtration is about 2 ml per minute. पर मिनट कितना है जो फालतू फिल्टर हुआ है, जो लिम्फेटिक्स लेके जाएंगे, कैपिलरीज नहीं ले जा सकती. सो दैट इज होल बॉडी में 2 ml पर मिनट फालतू फ्लूइड फिल्टर हुआ है, और ये फालतू फ्लूइड हैज टू बी टेकन बाय द कैपिलरी बैक इनटू द ब्लड. इसको जरा कितने फिल्ट्रेशन प्रेशर का फर्क से ये पैदा हुआ है? 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे, और पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी जब इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल गिव अस फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट. ये तो एक्चुअल 0.3 है ना. एक्चुअल जो इम्बैलेंस है बिटवीन फिल्ट्रेशन फोर्सेस एंड द एब्जॉर्प्शन फोर्सेस इज 0.3 मिलीमीटर मर्करी. लेकिन हम फर्ज करें अगर एक होता तो कितना फ्लूइड रहता, उसको हम फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं. तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या है? नेट फिल्ट्रेशन एक्सप्रेस पर मिलीमीटर मर्करी. ये 0.3 मिलीमीटर मर्करी है पर 1 मिलीमीटर मर्करी. पर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी उसको जब एक्सप्रेस करेंगे, अब जरा दे लें इसका 1 पे कैलकुलेट करें, दैट विल बी 6.67 ml पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी. होल बॉडी का फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट कितना है पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी? अगर प्रेशर का डिफरेंस हो, जो नहीं है, ये हमने सिर्फ फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट देखने के लिए कि किसी कैपिलरी का फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, जैसे हमने फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट उसका देखे ना, ग्लोमेरुलर का वो बहुत ज्यादा है, तो नेट फिल्ट्रेशन वहां बहुत ज्यादा है. सो द 6.6 मिलीमीटर दैट इज द फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इन होल द बॉडी. और किसी जगह लिवर में ये ज्यादा है, ब्रेन में शायद कुछ और है, और मसल में कुछ और है. फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिफर्स इन डिफरेंट कैपिलरीज. फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट वेरीज ड्रास्टिकली इन डिफरेंट टिश्यूज. वो जो हम ब्रेन में और लिवर में और मसल में और किडनी में देख के आएंगे, उनका फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिफर करता है. जैसे 6.67 तो होल बॉडी का है ना, किसी जगह 8 होगा, किसी जगह 2 होगा. मिसाल के तौर पर, मिसाल ऐसे फर्ज करके बता रहा हूँ. तो दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट. Abnormalities of the capillary pressure. अब ये प्रेशर खराब होंगे, स्टार्लिंग फोर्सेस, इनको हम सारे प्रेशर को इकट्ठा क्या कहते हैं? These are known as starling forces. If something is wrong with these starling forces, abnormalities of the capillary pressure, स्पेशली कैपिलरी प्रेशर अगर खराब होता है, it will affect the starling forces. का बड़ी फोर्स तो ये कैपिलरी प्रेशर है. इंक्रीज मीन कैपिलरी प्रेशर, नॉर्मल हम 17.3 बोला हुआ है. अगर इट इज मोर, हमने एग्जांपल दी थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग दी प्रीवियस लेक्चर में, probably we discussed that is if the central venous pressure, right atrial pressure increases, back pressure in the veins will increase, in the venules will increase, in the capillaries will increase. So this 17 millimeter of mercury will not be 17, it may be 20, it may be 30. So if the mean capillary pressure is more than 17 millimeter of mercury, that means net force of filtration will be increased. Net filtration force will increase. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? More filtration of the fluid will be taking place and this will result into the edema. ये edema काज करेगा. हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में venous साइड पे. That is, अब हम उसको देख रहे हैं. कैपिलरी प्रेशर, ये फोर्सेज हैं बढ़ रही हैं. स्टार्लिंग फोर्सेज में कैपिलरी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इफ देयर इज राइट साइडेड फेलियर. मीन सर्कुलेट, वो क्या कहते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर इज इंक्रीज. नॉर्मल 0 होता है, अगर वो 30 होगा तो वेन्स में उससे भी ज्यादा होना चाहिए ना. It will be more, कैपिलरी में भी ज्यादा होगा. So it will increase the more filtration force. Net filtration will increase. If this volume is 3.6 लीटर एक्सीड भी करता है तो वो तो ले जाती हैं. 4 लीटर हो जाए वो भी लिम्फेटिक्स ले जाएंगी. इफ दिस फिल्टर्ड वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल कैपेबिलिटी ऑफ द लिम्फेटिक वेसल टू ड्रेन दिस फ्लूइड, ओनली देन एडिमा विल अकर. ये लिखा हुआ है, इफ दिस वॉल्यूम एक्सीड द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज, एडिमा विल डेवलप. लिम्फेटिक ये फालतू फ्लूइड को भी लेके जाती हैं, लेकिन देयर इज अ लिमिट. उसके बाद उनके ड्रेनेज कम हो जाए, then the fluid will be collected in the interstitium and that will cause the edema. So if this volume, extra volume exceed the capacity of this lymphatic system drainage, then edema will occur. और उल्टा, when there is decreased mean capillary pressure, जब भी ज्यादा होगा, then the reabsorption will be more than filtration.
अगर कैपिलरी प्रेशर 17 से भी कम हो जाए, 17 से कम हो जाएगा तो देन फिल्ट्रेशन फोर्सेस तो वो उतनी रहेंगी ना, एब्जॉर्प्शन फोर्सेस, फिल्ट्रेशन फोर्स कम हो गया, एब्जॉर्प्शन फोर्स, तो क्या होगा, फ्लूइड विल बी शिफ्टेड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द कैपिलरी। तो अब इसको हम लफ्ज देने लगाऊं, दैट इज if the capillary pressure is more filtration will be occurring, fluid will be shifted from the capillary into the interstitium. If the filtration forces are less, that is capillary pressure कम होने से less होता है, if the मसलन किसी को blood shock हो गया, किसी का blood pressure गिर गया, तो कैपिलरी प्रेशर गिर जाएगा उसका, कैपिलरी प्रेशर बिलो 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सो मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड विल बी टेकिंग प्लेस। क्या मतलब है, फ्लूइड विल बी शिफ्टेड फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द कैपिलरी, is shift into the capillary or shift out of the capillary. This is known as capillary fluid shift. इसका नाम ही capillary fluid shift है। So blood volume, so decrease mean capillary pressure will cause more absorption and more blood volume can be increased. Blood volume will be increased because of the shifting of the fluid from the interstitium into the this capillary department. This is one of the blood pressure regulating mechanism, capillary fluid shift. ऐसे नहीं है कि सिर्फ हार्ट ने काम करना है, ये फ्लूइड भी ऐड होता है, कैपिलरीज में से भी फ्लूइड ऐड होता है फ्रॉम द इंटरस्टिशियम। दिस इज नोन एज कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट। ये जो अगर अंदर कैपिलरी प्रेशर ज्यादा है तो फिल्टर विल बी, फ्लूइड विल फिल्टर्ड आउट, और वहां पे कम है तो वापस भी आएगा। कैपिलरी के अक्रॉस फ्लूइड शिफ्ट होता है, ब्लड वॉल्यूम कम करने हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए कैपिलरी से फ्लूइड अंदर आएगा। So this whole phenomena is known as capillary fluid shift, दोनों तरफ। Abnormalities of the plasma colloid, ये तो हमने capillary pressure का abnormality देखी। Colloid osmotic pressure, which is the only force for the retention of the fluid, which is the only force for the absorption, वो 28 है। अगर plasma protein कम हो जाए तो the only force कम हो जाएगी, so it will cause more filtration of the fluid. This is the retention force. This is the osmotic pressure. It retains the fluid inside the capillary. If this is reduced, then more filtration will be taking place. Decreased plasma protein जब भी होंगे, hypoproteinemia जिसको हम कहते हैं, decreased plasma colloid osmotic pressure, and this will cause the net increased filtration forces. Colloid osmotic pressure is absorption force. वो कम होगी तो क्या मतलब है, फिल्ट्रेशन फोर्स हैज इंक्रीज एंड देयर विल बी लेस एब्जॉर्प्शन, मोर फिल्ट्रेशन, दैट मीन दिस विल आल्सो कॉज एडिमा, ये भी एडिमा करेगा। इसलिए जब भी हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, चाहे क्वाशियोर्कर सिंड्रोम है या किसी और वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन लॉस्ट इन द यूरिन है, या जैसे किडनी डिजीज है, लॉट ऑफ प्रोटीन इज लॉस्ट, और दी वो प्री एक्लेम्सिया आपने नाम सुने होंगे, प्रेगनेंसी की डिजीज है, लॉट ऑफ प्रोटीन्स आर लॉस्ट, so they result into the decreased plasma protein and that causes more filtration of the fluid and that causes edema। उन सारी डिजीज में एडिमा होता है, और प्रोटीन जब भी लॉस होंगे एडिमा होगा। इफ दिस वॉल्यूम एक्सीड द मैक्सिमम कैपेबिलिटी, ऑफ कोर्स ये तो हमने ध्यान में रखना है ना, ये फिल्ट्रेशन का वॉल्यूम इट विल बी हैंडल्ड बाय द लिम्फेटिक्स। अगर उनके हैंडलिंग के बावजूद भी फ्लूइड ज्यादा है, ओनली देन एडिमा विल अकर। सो इफ दिस वॉल्यूम एक्सीड द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज, एडिमा विल डेवलप। पिछली स्लाइड पे भी ये हमने बात की थी। सो हाइपोप्रोटीनीमिया दिस कॉजेस एडिमा, हाइपोप्रोटीनीमिया में भी एडिमा होता है। मसला नेफ्रेटिक एडिमा, इसको किडनी के डिजीजेस की वजह से जो एडिमा होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिसाल के तौर पर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिसाल के तौर पर, और भी किडनी डिजीजेस बहुत सी हैं जिसमें देयर लॉट ऑफ प्रोटीन्स आर लॉस्ट इन द यूरिन, उसकी वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया होता है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू, तो इसको कहते हैं नेफ्रेटिक एडिमा। So these are the two types of edemas. So here we next video inshallah next, so that's capillary exchange की हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे वो lymphatic system का सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। we are going to talk about the lymphatic system। वो जो एक्स्ट्रा सिस्टम अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, वो 3.6 लीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड जो रह जाता है उसकी ड्रेनेज के लिए, बल्कि और भी अगर फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रही हो तो दैट कैन बी टेकन बाय द लिम्फेटिक सिस्टम बैक टू द ब्लड वॉल्यूम टू मेंटेन द नॉर्मल इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैलेंस, उसको रखने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप यू आर फॉलोइंग मी। इफ यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम ऑलवेज आई वेलकम क्वेश्चन, आप दे दें क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर। और फिर रिक्वेस्ट ये है कि हमारी इस पेज को सब्सक्राइब भी करें
और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करें, वो भी सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सदका जारिया मेरा भी और आपका भी हो। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू।